Hello friends, myself Mani Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we will discuss about imperfection in solids. Dear friends, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे imperfection in solids की, means defects in crystal, यानी कि क्रिस्टल दोष के बारे में बात करेंगे हम लोग. What is imperfection in solid? Any deviation from perfectly ordered arrangement of the constant particle in crystal lattice is called imperfection in solid. जब किसी आइडियल क्रिस्टल के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं उसमें अगर किसी तरीके का डेविएशन आ जाता है, कोई वेरिएशन आ जाता है, उसे हम लोग इम्परफेक्शन कहते हैं. जस्ट लाइक दिस टू स्ट्रक्चर्स, दिस इज़ आइडियल क्रिस्टल. आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो रेड स्फीयर है और जो ग्रीन स्फीयर है वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न में जमा है. बट जैसे इसके अंदर इम्परफेक्शन आएगा, there will be a disturbance in the arrangement of green part sphere and red sphere. This is known as imperfection. इसे हम लोग defects कहते हैं. Now the classification of defects based on dimensionality. Dimension के basis पर कितने टाइप के defects होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. Zero defects, that is known as point defect. Zero dimension, sorry. One dimensional, that is line defect. Two dimension surface or interface defect, and three dimension volume defects. The zero dimension defects are vacancy, impurity, Frankel, Schottky and Interstitial, which is an topic. In one dimensional there are three types: dislocation, dislocation and dispiration. In two dimension there are surface, interface boundary, grain boundary, twin boundary, stacking faults and antiphase boundaries. In three dimension, twins, precipitate, faulted region, voids and cracks, and thermal vibration. Imperfection in crystals. Basically there are two types of defects: point defect and line defects, which is known as dislocation. The point defects further classified into 6 more classes: Schottky defects, Frankel defect, vacancy defects, interstitial defects, metal access defects, the color centers and metal deficiency defects. The line defect are two types: as dislocation and screw dislocation. The types of imperfection. There are two types of imperfection known in crystal lattice. First is point defect, arises due to disorder in the regular arrangement of constant particle around a point. जब क्रिस्टल के अंदर किसी लैटिस पॉइंट के चारों तरफ कोई इरेगुलर अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं. द सेकंड इज नोन एज लाइन डिफेक्ट, अराइजेज ड्यू टू डिसऑर्डर इन द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन एंटायर रो. जब एक पूरी की पूरी रो के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाता है या डिसलोकेशन हो जाता है उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं. Yes. Types of point defects. Further, the point defects is classified into 3 categories: impurity defect, stoichiometric defect and non-stoichiometric defects. Stoichiometric defects and non-stoichiometric defects. Difference. Vacancy defect are stoichiometric defect, interstitial defect are stoichiometric defect, Frankel defect, stoichiometric defect, and Schottky defect is stoichiometric defect. Non-stoichiometric defects are metal access defect and metal deficiency defects. Now, impurity defect arises when foreign atoms are present at the lattice side in place of host atom, generates impurity defect. जब एक आइडियल क्रिस्टल जिन कांस्टेंट पार्टिकल से बना होता है उसमें से जब किसी कांस्टेंट पार्टिकल को कोई दूसरा पार्टिकल डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हेन अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्टोनशियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl, then at some lattice sites Na+ ion are substituted by strontium 2+ ion maintaining electrical neutrality. जब हम लोग NaCl के अंदर कुछ अमाउंट में स्टोनशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो जो Na+ आयन्स होते हैं उनको स्टोनशियम आयन डिस्प्लेस कर देते हैं. तो सोडियम आयन की जगह
स्टोंशियम आयन आ जाता है, इसलिए उसे हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। द केटायन वैकेंसी प्रोड्यूसेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोंशियम आयन्स एडेड। कितने Na+ जाएंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने हम लोग स्टोंशियम आयन ऐड कर रहे हैं। एक स्टोंशियम आयन ऐड करने पर 2 Na+ अपने लैटिस साइड को छोड़ देते हैं, लाइक दिस। यू कैन ऑब्जर्व 1 strontium ion at the place of Na+, so there will be 2 Na+ will be missing, one from this side and one from this another side. So this is impurity defects. Now the next class of defects is vacancy and interstitial defect. Vacancy defects arises when some of the lattice point left vacant during the crystal formation. जब crystal formation हो रहा होता है तब कुछ कांस्टेंट पार्टिकल अपनी लैटिस साइड को छोड़ देते हैं, वैकेंट रह जाती है, उसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ग्रीन स्फीयर है उनकी जगह ये वाइट स्क्वायर बना हुआ है, मतलब यहाँ से कांस्टेंट पार्टिकल हट चुके हैं, इसे हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सम ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल अकोमोडेट द इंटरस्टिशियल साइड अदर देन द लैटिस पॉइंट। जब कुछ कांस्टेंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट के बजाय कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर चले जाते हैं, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड कहते हैं, तो उसे हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, लाइक दिस। दिस इज़ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको यहाँ पर अरेंज होना था लेकिन ये कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में चला गया है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज Schottky defects. Schottky defects is a type of vacancy defect and it belongs to ionic compound and stoichiometric defects. Equal number of cation and anion are missing from their lattice sides generates Schottky defects. जब इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड से मिस होते हैं तो उसे हम लोग Schottky defect कहते हैं। द वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। Schottky डिफेक्ट की वजह से जो आयनिक सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कम हो जाते हैं। देन नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड Schottky? The vacancy defect belongs to covalent compound and Schottky defects belongs to ionic compound. This is the basic difference between vacancy and Schottky defects. Shown by the crystal with high coordination number and similar size of cation and anion. किस टाइप के क्रिस्टल Schottky डिफेक्ट शो करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है और केटायन और एनायन का साइज सेम होता है? Examples: sodium chloride, potassium chloride, sodium bromide, silver bromide. Now this is the structure. You can observe that the lattice point which represented by a square bracket that indicates positive space and the light yellow that indicates negative ion. So equal number of positive and negative ions are missing from the lattice side. That defect is known as Schottky defects. Now the next defect is Frankel defect. In ionic solid in which the smaller ion is cation is dislocated from its normal side to an interstitial side generate Frankel defect. इस डिफेक्ट के अंदर जो केटायन जो होता है वो अपनी नॉर्मल लैटिस साइड को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। इसका मतलब यहाँ केटायन का साइज छोटा होता है। इन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ऑफ आयनिक सॉलिड डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल वहाँ से कोई भी मिस नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल में यही है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड से बिलोंग करते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। दिस शोन बाय द क्रिस्टल विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। वो क्रिस्टल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है और केटायन और एनायन की साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, वो इस तरह के फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल: जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। लुक एट हियर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो केटायन है वो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है, इसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
This is the type of non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects means when the stoichiometry do not follow in the formation of crystal. So, और stoichiometry का मीनिंग होता है जो फॉर्मूला हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्योरेटिकल, वही फॉर्मूला स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो होता है, तो उसे हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं। और अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो उसे नॉन स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन बी जनरेटेड बाय द टू मेथड, बाय एनायन वैकेंसीज एंड बाय एक्स्ट्रा कैटायन। नाउ बाय एनायन वैकेंसीज, an anion may be missing from the lattice side and the hole is occupied by an electron that maintains the electrical neutrality is known as F center. इसमें एनायन जो होता है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ देता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी जगह पर हेल्ड रहता है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और जिस जगह से एनायन जाता है और इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहता है उसे एफ सेंटर कहते हैं। The crystal becomes colored due to the excitation of the unpaired electrons when they absorb energy from visible light falling on the crystal. तो जो क्रिस्टल होता है वो कलर्ड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी अब्जॉर्व करके विजिबल लाइट की रेंज में चले जाते हैं, इसलिए कलर क्रिस्टल शो करते हैं। एक्सेस ऑफ लिथियम मैक्स लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल पिंक, पोटेशियम मैक्स पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट एंड सोडियम मैक्स सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल येलो। दिस इज जहाँ पर आप ई नेगेटिव देख रहे हैं, इट इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर एक एनायन था, वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के जा चुका है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रैप है एंड दैट इज़ नोन एज एफ सेंटर। एफ स्टैंड फॉर द ग्रीक वर्ड फर्ब जेंटर विच मीन्स कलर प्रोड्यूसिंग साइड। तो जो तीनों एग्जाम्पल हमने देखे हैं, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो कलर्ड होते हैं उसके पीछे रीजन एफ सेंटर होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ metal excess defect will be generated by extra cation, arises due to the presence of extra cation in the interstitial sites. इस मेथड के अंदर जो एक्स्ट्रा कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइड्स में चला जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ई नेगेटिव। Zinc oxide is white in color at room temperature. When zinc oxide is heated, it loses oxygen and turns yellow. Zinc oxide जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर वाइट इन कलर का होता है, लेकिन जब उसे हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन का लॉस करता है और येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो Zn2+ आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है और ऑक्सीजन के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड पर अवेलेबल रहता है। So this is the second method by which metal excess defects generate. Like this, zinc oxide heated, convert into zinc ion plus half O2 plus 2 electrons. Now the point defects, again this is a symmetric diagram: Schottky defect, Frankel defect, vacancy defect, interstitial defects, self-interstitial distortion of planes and interstitial atoms. Metal excess defect, Zn2+ ion occupy at the interstitial side. As soon as that electron at the interstitial side, the color centers. Metal deficiency defects, this is the example of metal deficiency defect which we are going to discuss. This is a line defect example as dislocation, screw dislocation. I hope you have understand all these things in a well manner. What are the defects, types of defects? If you enjoy this video, please like, subscribe and share. Thank you so much.